Good morning children, welcome to class 1 computers. Children, this is our computer book IT Planet, My Bits and Bytes, computer series 1. Children, in our previous video we were doing chapter 7, that is the mouse. So children, in that chapter we have studied all about mouse and we were doing book exercise, and then we had done some questions from the middle of the chapter. So we have completed mouse, children. Today we are going to start our next chapter, that is MS Paint. So children, our today's topic is children chapter 8, that is MS Paint. Children, starting with paint. In this chapter we are going to read about MS Paint. So firstly we will learn how to start MS Paint program, and then we will read about all the tools or color box or other tools given in the paint program. So children, in this chapter we are going to cover the following headings, that is starting with MS Paint, toolbox, color box, tools in the toolbox, pencil tool, eraser tool, brush tool, line tool, rectangle tool, oval tool, and fill with color. So children, at last we will read about fill with color. So children, once again, here is Lappy, as you can see on your screen, children. Here is Lappy, and Lappy tells all about the computer in the chapter. So in this chapter Lappy will be telling us all about MS Paint. तो इस चैप्टर में हमें Lappy पेंट के बारे में वो सारी चीज़ें बताएगा जो हमें हमारे लेवल पे पता होनी चाहिए. So children, Lappy says, "Hi kids, I know all of you like drawing and coloring." So children, whenever you children get time, you start doing drawing and coloring. But children, when you do drawing and coloring, you need lot of things. You need pencil and eraser, a scale, colors, etc. to draw and color, or a sheet of paper. So आप अपनी ड्राइंग कॉपी भी गंदी करते हो, कभी अच्छी बनती है, कभी ख़राब बनती है, पेजेस भी फाड़ते हो. सो इन दिस वे यू डू ड्राइंग एंड कलरिंग, एंड योर मदर कीप ऑन स्कोल्डिंग यू, और मम्मी हमेशा कहती है कि सारी कॉपी फाड़ देते हो, पूरी ड्राइंग की कॉपी कलर करके गंदी कर दी है, वगैरह वगैरह. बट हियर चिल्ड्रन, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू read about a different type of drawing. So children, here we do not need eraser, pencil, scale, color, or a drawing paper. So children, here we are going to learn about a program which is called paint program. So children, of course you need all these things to draw and color, but you are going to use these things from the paint program only. All these things are present in the paint program, and from there you are going to use these things. So children, here we don't have any word which is not known to you. यहाँ पे अभी तक हमने जो भी पढ़ा, यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो या आपने पढ़ा ना हो. यहाँ पे एक नया वर्ड है MS पेंट. चिल्ड्रन, MS पेंट का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट. जैसे कि हम ड्राइंग एंड कलरिंग पेपर पे करते हैं, पेंसिल लेकर के करते हैं, कलर लेकर के कलर करते हैं, उसी तरह MS पेंट में भी हम कलर करते हैं. बस थिंग इज़ कि वी डोंट नीड पेपर, हमें पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती. पेंसिल जो हम लिखने के लिए पेंसिल यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम में होता है, वहाँ से हम इन चीज़ों को लेते हैं और ड्रॉ और पेंट करते हैं. सो चिल्ड्रन, सो here today we are going to read about a new program. आज हम एक नए प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे in the computer. अभी तक children we have learned how to start a computer. हमको कंप्यूटर स्टार्ट करना आ गया, और फिर हमको different parts of, we have learnt about different parts of computer also, because as you know children, whenever you work on a computer you need to use these parts.
सो इन द बिगिनिंग चिल्ड्रन हमने शुरू में ही चैप्टर के पढ़ा था कि देर आर डिफरेंट पार्ट्स इन द कंप्यूटर एंड ईच एंड एवरी पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने पढ़ा कि हम जो कंप्यूटर होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सारे पार्ट्स इसकी ज़रूरी होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कि वी हैव स्टडीड अबाउट कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ लिया, आपको कीबोर्ड के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद आपने डिफरेंट पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्विच बोर्ड से जो जहाँ से आप प्लग इन करते हो वो जान लिया। देन यू नो वेरी वेल दैट यूपीएस, देन सीपीयू, फिर मॉनिटर क्या है। उसके बाद you learnt about keyboard and mouse also. So children, as you know, each and every part of the computer is used during doing any work on the computer. हम कोई भी काम अगर कंप्यूटर पे करते हैं तो हम हर एक किसी न किसी पार्ट को यूज़ करके ही करते हैं, और जब भी हम करते हैं ये सारे पार्ट किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। वी कैन नॉट जस्ट यूज़ अ मॉनिटर और जस्ट यूज़ अ माउस और कीबोर्ड, अकेले किसी से भी हम काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी चिल्ड्रन, in order to work on draw or paint on computer, the most important thing is you need a mouse. As I told you, mouse is a part of computer which is used while drawing and पेंटिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि माउस उसका मेन पर्पस होता है सेलेक्ट करना। कोई भी चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, वी नीड टू सेलेक्ट, पॉइंट और मूव। अदर देन दैट चिल्ड्रन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माउस इज टू ड्रॉ एंड कलर। हम ड्रॉ और कलर करने के लिए भी माउस का यूज़ करते हैं। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने पिछले, इसलिए द प्रीवियस चैप्टर विच वी हैव स्टडीड इज द माउस। तो इससे पहले हमने पेंट को पढ़ने से पहले या सीखने से पहले हमने पहले माउस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद अभी वी ऑल नो हाउ टू यूज़ अ माउस। आप सभी को पता है ना कि हमें माउस कैसे यूज़ करना है, अपना हैंड कैसे माउस के ऊपर रखना है और फिर उसे ऑपरेट करना है। तो हमको वो भी आ गया। तो अब हम वी आर नाउ रेडी टू डू ड्राइंग एंड पेंटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम मज़े करेंगे और हम ड्राइंग्स भी करेंगे, और हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है टू पास आवर टाइम, टू स्पेंड आवर टाइम। सो चिल्ड्रन, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ लेते हैं तो वी गेट टायर्ड, वी फील लाइक डूइंग समथिंग एल्स टू रिलैक्स आवरसेल्फ और टू रीगेन आवर एनर्जी और इंटरेस्ट। तो हम वापस अपने पढ़ाई में मन लगा सके, इसलिए हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि हम अपने आप को फिर रिक्रिएट कर सकें, या फिर हम अपने आप को अपना रीगेन कर सके अपने इंटरेस्ट को। फॉर दैट चिल्ड्रन वी नीड टू डू समथिंग एल्स विच वी लाइक टू डू एंड वी एन्जॉय डूइंग। तो कभी कभी हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया था। देन कभी कभी हम क्या करते हैं, ड्राइंग और कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरीज देख सकते हैं, तो ये सारे काम कर सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ वी कैन स्पेंड आवर टाइम और यूटिलाइज आवर टाइम और एन्जॉय आवर टाइम इन डूइंग drawing and painting. So children, you need a pencil, an eraser, a scale, a color, etc. to draw and color on a sheet of paper. अगर आपको ड्राइंग कलरिंग करना है तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है और आप ड्रॉ कर सकते हो। Similarly, you need all these things to draw on a computer also. सो चिल्ड्रन, फॉर डूइंग, कहीं पे भी आप ड्राइंग और कलरिंग करेंगे तो यू नीड दीज थिंग्स। तो यहाँ पे कंप्यूटर पे भी जब हम ड्राइंग और कलरिंग करेंगे तो वी नीड ऑल दीज थिंग्स। ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम कॉल्ड MS पेंट। सो हम जो पेंसिल और इरेजर से अपने बुक या नोटबुक में कलर करते हैं उसको, बल्कि हम जो हमारे पेंट प्रोग्राम में पेंसिल, इरेजर और कलर है उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चिल्ड्रन, हियर टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द न्यू प्रोग्राम दैट इज़ MS पेंट, जिसको हम MS पेंट कहते हैं। नाम ही पेंट है, तो इससे हम ड्राइंग और कलरिंग कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, लेट अस know more about this MS paint, starting with so children, starting paint program. First of all, let us learn how to start a paint program. So children, you have opened your computer and till now we have learnt about how to start a computer. हमने सीख लिया है कि कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। So here you have opened your computer. Now you are going to start from the start button. So children, you can see here, आप यहाँ देख सकते हो, here
this is your screen, computer screen. Now you can see children, here is start button. This is called start button. When you open your computer on the desktop children, you can see there is a small button or there is a window made on a सर्कल के ऊपर विंडो बना हुआ है, जो विंडो का आइकन होता है, MS विंडो का आइकन होता है, जो आप यहाँ पे भी ये भी देख सकते हो, इस तरह का कुछ ये जो ऊपर ये है, इसी तरह का यहाँ पे विंडो बना होता है, का आइकन बना होता है, और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे चिल्ड्रन, इसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। और ये आपके स्टेटस बार जो बॉटम में स्ट्रिप होती है या ये लाइन होता है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, कंप्यूटर का स्टेटस बार होता है, इसके ऊपर ये आपका स्टार्ट बटन दिया होता है। यहाँ पे कॉर्नर में आपका ये स्टार्ट बटन है। यू विल क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। ये सब प्रोग्राम है, इसमें से ऑल प्रोग्राम पे जब हम क्लिक करेंगे तो वी विल गेट अनदर मीनू, हमें एक और मीनू दिखाई देगा। सो चिल्ड्रन, फ्रॉम हियर यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आप सबसे पहले यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। देन चिल्ड्रन यू विल क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। यू कैन सी हियर देयर इज़ अ रेड बॉक्स, इसमें ये ऑल प्रोग्राम है, इस पे क्लिक करोगे। जब आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे चिल्ड्रन, तो आपको एक मेनू खुलेगा, देयर विल बी अ मेनू। उसमें से यू आर गोइंग टू सर्च फॉर एसेसरीज। चिल्ड्रन यू कैन सी हियर दिस इज accessories, ACCESSORIES, accessories. So you will click on accessories. Here also you can see इस मेनू में सबसे ऊपर accessories को क्लिक किया हुआ है या सेलेक्ट किया हुआ है। From there children, इसके नीचे आपको पेंट दिखाई देगा, ये है पेंट। फिर देन यू विल क्लिक ऑन पेंट। अब जैसे ही पेंट पे क्लिक करोगे चिल्ड्रन, यू विल गेट अनदर स्क्रीन, आपको एक विंडो दिखाई देगा। दिस हियर इज़ अ विंडो। अब चिल्ड्रन इस विंडो को हम पेंट विंडो कहते हैं, ये हमारा पेंट प्रोग्राम का विंडो है। यहाँ पे हमने जो भी विंडो अभी हमारे स्क्रीन पे दिखाई देगा, दिस इज़ पेंट विंडो प्रोग्राम। अब ये जो हमारे विंडो है, उसका पेंट का विंडो है, ये खुल गया है। अब चिल्ड्रन सबसे ऊपर यू कैन सी एक लाइन है, रेड कलर की लाइन, दिस इज़ योर लाइन। यू कैन सी हियर दिस इज़ लाइन। सबसे ऊपर जो हमको लाइन दिख रही है, इसको हम कहते हैं, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल का मतलब आप जानते हो, किसी भी चीज़ का नाम होना या टाइटल होना, कोई भी काम हम चीज़ होती है उसका एक नाम होता है। तो यहाँ पे भी ये जो हमने प्रोग्राम का विंडो खोला है, इसमें जो भी हम करेंगे उसका नाम यहाँ पे शो करेगा, इसलिए इसको यू कैन सी हियर इट इज़ अनटाइटल्ड पेंट। अभी यहाँ पे ये अनटाइटल्ड पेंट है, क्योंकि हमने सिर्फ स्क्रीन को खोला है, हमने इसको यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं किया या हमने इसको नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है अनटाइटल्ड पेंट। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? अनटाइटल्ड पेंट। अब जब हम इसको प्रोग्राम को करने के बाद सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसका नाम दिखाई देगा। उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव 3 बटन्स, उसी पे हमारे पास टाइटल बार पे ही यहाँ पे 3 बटन्स हैं। अब चिल्ड्रन यहाँ पे जब हमको बॉक्स दिखाई दे रहा है, हम उस पर प्रेस करेंगे, मतलब फुल स्क्रीन हमारे पास है। और इसके बाद 2 डबल बॉक्स कभी कभी दिखाता है, तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला है, हम इसको मिनिमाइज इससे करते हैं। मिनिमाइज हम ये माइनस से मिनिमाइज करते हैं और इससे हम मैक्सिमाइज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ये क्रॉस है, इससे हम बंद करते हैं। इफ़ यू वांट टू क्लोज द प्रोग्राम, इफ़ यू वांट टू क्लोज द विंडो, यू विल क्लिक ऑन दिस क्रॉस बटन। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये 3 आपको फिलहाल जानना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस का मतलब है यू वांट टू close the window or the program which you are at present working or doing work, उसे आप बंद करना चाह रहे हो तो क्रॉस पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो ये स्क्वायर बॉक्स हमको दिखाई देता है, ये मैक्सिमाइज करने का है, स्क्रीन को बड़ा करने के लिए है। उसके बाद जब ये माइनस दिखाई देता है, इसका मतलब है कि हमको मिनिमाइज़ करना है। प्रोग्राम एक्टिव तो रहेगा लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा। वो कहाँ दिखाई देगा? जो नीचे मैंने अभी आपको स्टेटस बार बोला था, एक स्ट्रिप जैसे ऊपर टाइटल बार है, नीचे एक स्टेटस बार दिखाई देता है, उस पर वो शो करेगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज या छोटा बड़ा करने के लिए है, ठीक है। अब चिल्ड्रन यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे एक और लाइन है जिसको हम कहते हैं मेनू बार।
अब मेनू का मतलब होता है वो सारे फैसिलिटीज़ विच यू कैन डू ऑन दिस प्रोग्राम, जैसे फाइल होता है, व्यू होता है, एडिट होता है और होम पेज होता है, होम होता है। ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसको आप फॉर्मेट कर सकते हो यूज़ करके इसमें कोई भी प्रोग्राम करते हो। उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव टू, उसके नीचे वाले लाइन में हियर वी कैन सी 2 बॉक्सेस, हमारे पास 2 बॉक्स है चिल्ड्रन। पहला बॉक्स जो है द वन विच इज़ हैविंग ग्रीन कलर्ड बाउंड्री, ये जो ग्रीन कलर का पूरा बाउंड्री है इसको हम कहते हैं टूल बॉक्स। टूल का मतलब आप सभी जानते हो, टूल का मतलब होता है वो सारे ऑप्शंस जिसको यूज़ करके आप यहाँ पे ड्राइंग और कलरिंग करोगे, जैसे कि पेंसिल, इरेज़र। अभी मैंने आपको बताया जिस तरह से हम बुक में पेंसिल और इरेज़र को यूज़ करते हैं और ड्राइंग करते हैं ड्राइंग बुक में या नोटबुक में, उसी तरह हम यहाँ पे भी ड्राइंग करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। So children, this is toolbar. So and first box which is has a green boundary is tool box. इसमें सारे tools provided है children, whether it shape हो, brush हो और pencil हो, eraser हो, ये सारे tools यहाँ पे provided है and we are going to use these tools while ड्राइंग करते टाइम हम इन सारे टूल्स को यूज़ करेंगे। देन चिल्ड्रन वी हैव अनदर बॉक्स, आप देख सकते हो इसके बगल में एक और बॉक्स है। दिस बॉक्स इज हैविंग पिंक कलर बाउंड्री, यहाँ पे पिंक कलर की बाउंड्री जिस बॉक्स की है इसको हम कलर बॉक्स कहते हैं, ये है कलर बॉक्स। अब इसमें जो कलर्स हैं इसको यूज़ करके हम कलर फिल करते हैं, जो भी हम ड्राइंग करते हैं उसको फिल करने के लिए हम इन सारे कलर्स को यूज़ करते हैं। सो देयर हियर वी हैव 2 बॉक्सेस, वन इज़ टूल बॉक्स जिसमें टूल है फॉर ड्राइंग एंड दूसरा है कलर है, यहाँ से लेकर के हम जो भी ड्रॉ करते हैं उसमें कलर करते हैं। सो वॉट एवर ड्राइंग वी आर ड्राइंग हियर वी यूज़ कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स टू कलर इट, फिल द कलर। आफ्टर दैट चिल्ड्रन वी हैव दिस विंडो। अब विंडो में हमारे पास जो प्लेन एरिया है उसको हम ड्राइंग एरिया कहते हैं चिल्ड्रन। दिस एरिया इज कॉल्ड ड्राइंग एरिया एंड डू यू नो दिस एरिया इज हैविंग इट्स साइड में या कॉर्नर में एक छोटा सा स्क्वायर होता है जहाँ से हम इसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कि इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। हम इसको पुल करके बड़ा भी एरिया को कर सकते हैं और एरिया को छोटा भी कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन ये मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में वी विल बी which we will be using while drawing and painting. So then children we have another thing here. Now we are going to read about these tools which are provided here one by one. तो सबसे पहले हम इन tools के बारे में एक एक करके जानेंगे, उसके बाद we will be doing drawing using the paint program. So children tool box का मतलब होता है कि the top most box on the इन द विंडो इज कॉल्ड टूल बॉक्स। जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स होता है मेनू बार के नीचे जो बॉक्स यहाँ पे होता है इसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। तो टूल बॉक्स इज ऑन द टॉप ऑफ द पेंट प्रोग्राम। जो पेंट प्रोग्राम होता है सबसे ऊपर जो होता है वो टूल बॉक्स होता है। अब इट कंटेन्स ऑल द टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्राइंग। अब एज दिस प्रोग्राम इज़ फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग इट हैज़ ऑल द टूल्स, जो भी टूल्स हमें पेंसिल, इरेज़र या फिर हमें फिल कलर ड्रॉप पर या फिर हमें मैग्नीफाइंग मीन्स किसी एरिया को मैग्नीफाई करना, तो ये सारे टूल्स या शेप्स ड्रॉ करने हो तो सारे शेप्स भी इसमें होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें ड्राइंग के लिए ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं एंड इट इज़ जस्ट लाइक योर पेंसिल बॉक्स। जिस तरह से पेंसिल बॉक्स में हमारे सब कुछ होता है तो इसमें भी वो सारी चीज़ें होती हैं। देन चिल्ड्रन उसके बगल में कलर बॉक्स होता है, अबाउट दैट विल बी रीडिंग लेटर ऑन। तो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट आर दीज थिंग्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इस टूल बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो चिल्ड्रन, फर्स्ट थिंग यहाँ पे स्क्वायर शेप में जो आप देख रहे हो दिस इज़ सिलेक्शन। अब हमको किसी भी ड्राइंग का कोई एरिया सेलेक्ट करना है तो हम इस सिलेक्शन बॉक्स को यूज़ करते हैं जिसे हम जो स्क्वायर शेप में होता है। फिर उसके बाद इसके बगल में हमारे पास है फर्स्ट वन, दिस वन इज़ पेंसिल। इसको हम पेंसिल कहते हैं। वी नीड अ पेंसिल टू ड्रॉ एनी डायग्राम, तो हम इसको यूज़ करते हैं। देन वी नीड टू फिल द कलर आफ्टर डूइंग ड्राइंग वी नीड टू फिल कलर, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये जो मग शेप में होता है जिससे हम कलर फिल करते हैं। देन चिल्ड्रन वी हैव
ए का मतलब है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है कुछ भी अगर हमें ड्राइंग एरिया में लिखना है, अगर हमने कुछ ड्राइंग बनाया, वी वांट टू नेम द आर ड्राइंग, या पर्टिकुलर शेप को या फिर फिगर को हम नेम करना चाहते हैं, तो वी यूज़ दिस टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखने का काम हम इस ए, कैपिटल ए टेक्स्ट से करते हैं। देन वी हैव अ ब्रश चिल्ड्रन। ब्रश ऑल्सो वी हैव वेरियस ऑप्शन, थिक होता है, थिन होता है, तो अलग अलग साइजेस के ब्रश आर प्रोवाइडेड। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस डाउन एरो की, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंट साइज़ के ब्रशेस हमको मिल जाते हैं, थिकनेस वाइज अलग अलग ब्रशेस हमको मिल जाते हैं। देन वी हैव इरेजर, दिस इज इरेजर। इरेजर का मतलब होता है सेम, टू इरेज समथिंग, सो फॉर द सेम यूज हियर वी हैव इरेजर। इफ़ यू आर ड्राइंग समथिंग एंड यू वांट टू इरेज अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन यूज़ इरेजर। उसके बाद वी हैव कलर पिकर। कलर अगर हमें पिक करना है तो हम ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। देन अगर किसी ड्राइंग के पार्ट को मैग्नीफाई करना होता है, बड़े करके देखना होता है, तो वी कैन यूज़ मैग्नीफायर आल्सो। मैग्नीफाइंग ग्लास के शेप में ये होता है, हम इससे मैग्नीफाई कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन वी हैव डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स होते हैं। यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन इज़ लाइन, देन कर्व, ओवल, रेक्टेंगल, और ये राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल। देन वी हैव पॉलीगन बनाना हो तो दिस शेप, देन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम। तो different types of shapes we have, and we can draw different shapes using these shapes given here. Then we have shape outline. If you want to give an outline or you want to shape the outline of a particular figure, you use shape outline. फिर shape fill। उसके बाद हमारे पास है साइज़। अगर आप अपने पेंसिल का या इरेज़र का साइज़ सेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप साइज़ को चूज़ करोगे और यू कैन डू दैट। सो चिल्ड्रन, दीज आर द डिफरेंट टूल्स विच वी आर गोइंग टू डू द ड्राइंग एंड कलरिंग। पहले ड्राइंग के लिए हम इन सारे टूल्स को यूज़ करेंगे। देन चिल्ड्रन, एक बार फिर हम देखते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा। लेट अस रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर। सो चिल्ड्रन, coming back to the chapter, in this chapter children, we are going to read about paint program. So children, what is paint program? Paint program, MS Paint हम इसे कहते हैं, and this is called Microsoft Paint. Now children, as we know, we need different things for doing color and ड्राइंग और कलरिंग। हमें ड्राइंग और कलरिंग करना होता है, तो पहले हम कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग दैट। एज वी नो चिल्ड्रन, वी नीड पेंसिल, हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। देन इरेज़र की ज़रूरत पड़ती है, स्केल की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड कलर्स एट्सेट्रा टू ड्रॉ एंड कलर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। देन वी नीड अ शीट ऑफ पेपर। And children, wherever you do drawing or painting, whether it is on a paper or in a computer, you need all these things. इन सारी चीज़ों को आपको क्यों ज़रूरत होती है? But the thing is, when you draw and color in a computer या on a computer, children, you have a program called MS Paint. जो कंप्यूटर है, इसमें एक प्रोग्राम होता है जिसे हम MS Paint कहते हैं। इस प्रोग्राम में चिल्ड्रन हमें पेंट, कलर, ड्राइंग, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो पेंट प्रोग्राम में होता है, इसलिए हमें अलग से इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम इटसेल्फ। ये प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। सपोज वी डोंट हैव एनीथिंग इन अ कंप्यूटर, anything at our home, but we have a computer, we can do all these things. And do you know children, अब जब हम ड्राइंग करते हैं तो बहुत सारा गंदा करते हैं, मिटाते हैं, या फिर गलतियाँ करते हैं, या कभी कभी हमको अपनी ड्राइंग पसंद नहीं आती तो हम बार बार मिटाते हैं और बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये भी झंझट नहीं होता कि हमारा पेज ख़राब हो रहा है या फिर हम मिटा नहीं सकते, या फिर हमने कलर कर दिया, कलर को रब नहीं कर सकते। हियर वी हैव ऑल दीज ऑप्शंस। हम उसे मिटा सकते हैं, कलर को भी हटा सकते हैं, पेपर भी वेस्ट नहीं होता, और हम नया शीट भी ले सकते हैं। वैसे तो अगर हम अपनी ड्राइंग कॉपी में एक पेज ख़राब हो गया, दूसरा लेंगे तो मम्मी डांटेगी, टीचर डांटेगी, बट हियर नोबडी इज़ गोइंग टू स्कूल, बिकॉज हम उसको आराम से इरेज कर सकते हैं, नया शीट ले सकते हैं। अगर हमको नहीं पसंद हम उसको सेव भी नहीं करेंगे, लेकिन हम
हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये कंप्यूटर पे ड्राइंग करना इज़ रियली एंजॉइंग एंड इट इज़ द गुड वे ऑफ आर स्पेंडिंग आर टाइम। अगर हमारे पास टाइम है और पढ़ाई के बाद हम कुछ अपने मन का करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम आराम से इसमें पेंट और कलर कर सकते हैं। और जितना ही हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वी विल लर्न टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स। हम मुश्किल ड्रॉ धीरे धीरे करते करते शेप्स और कार्टून्स बना सकते हैं, और फिर बहुत सारे शेप्स वगैरह के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हियर चिल्ड्रन, दिस इज़ पेंट प्रोग्राम विंडो, ये पेंट प्रोग्राम का विंडो है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्टार्ट। जस्ट नाउ वी स्टडीड चिल्ड्रन कि हमने कंप्यूटर ऑन करना सीख लिया। in the previous some chapters back we have studied how to start a computer। हमने कंप्यूटर को कैसे खोलना है वो सीख लिया। एंड नाउ वी आर रेडी टू डू एनी वर्क ऑन अ कंप्यूटर। अब हमको आ गया है कंप्यूटर खोलना, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब वी हैव रीच्ड डेस्कटॉप, डेस्कटॉप तक हम पहुंच गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। सो चिल्ड्रन, the program which we are going to start now is MS Paint program। as I told you, सबसे नीचे स्टेटस बार पे हमारे पास एक बटन होता है एंड दिस बटन इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें ये जो मेनू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दिख गया। अब इसमें हमारे पास अगला है ऑल प्रोग्राम। हमने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप है, ऑल प्रोग्राम में पे क्लिक करने के बाद हमको एक दूसरा मेन्यू खुलता है। ये पूरा मेनू हमको खुलता है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है चिल्ड्रन। इसमें हमने सबसे पहले विंडो एसेसरीज़ पे क्लिक किया। थर्ड स्टेप में वी क्लिक्ड ऑन विंडो एसेसरीज़, उसके बाद वी क्लिक्ड ऑन पेंट, उसके बाद हमने पेंट पे क्लिक किया। अब चिल्ड्रन, जैसे ही हम पेंट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया विंडो खुलेगा जिसको हम कहते हैं पेंट विंडो। अब इस पेंट विंडो में हमें क्या समझना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन। यहाँ पे अब चिल्ड्रन, हियर वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। एज यू नो चिल्ड्रन, हमारा प्रीवियस चैप्टर वॉज द माउस। इन दैट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट टू क्लिक मीन्स टू प्रेस द लेफ्ट बटन वंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर इज अ पिक्चर ऑफ क्लिक। क्लिक का मतलब है द वन विच इज टू लेफ्ट, द बटन विच इज टूवर्ड्स द लेफ्ट। पहली बात कि हमने माउस के बारे में पढ़ा तो वी स्टडीड दैट देयर आर टू बटन्स, वन इज लेफ्ट बटन एंड द अदर इज राइट बटन। तो हियर वी हैव लेफ्ट बटन एंड हियर इट इज़ गिवन वन क्लिक। दिस मीन्स एक बार हमने लेफ्ट बटन को क्लिक किया। एक बार लेफ्ट बटन को प्रेस करना यानी क्लिक करना कहलाता है। क्लिकिंग लेफ्ट बटन वंस इज कॉल्ड सिंगल क्लिक। तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे, जो भी हमको करना है उससे हम एक बार क्लिक करेंगे। जब मैं क्लिक कर रही हूँ मतलब प्रेसिंग लेफ्ट बटन वंस। अगर मैं जहाँ कहीं भी आपको बोलूँगी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करना है। एज आई टोल्ड यू, हियर वी स्टडी क्लिक का मतलब है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन मीन्स यू आर क्लिकिंग लेफ्ट बटन वंस। आप लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक कर रहे हो। ये सब जानने के लिए ही हमने सबसे पहले माउस के बारे में पढ़ा था एंड देन वी स्टार्टेड स्टडिंग द अबाउट द MS पेंट। तो यहाँ पे हमने एक बार स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देन वी क्लिक्ड ऑन ऑल प्रोग्राम। फिर एक बार हमने लेफ्ट बटन प्रेस किया तो वी क्लिक्ड ऑल प्रोग्राम, देन वी क्लिक्ड एसेसरीज। यहाँ पे भी हमने एक बार लेफ्ट बटन को क्लिक किया और फिर उसके बाद हमने क्लिक किया पेंट को। अब हमको ये वाला स्क्रीन खुल गया। एज यू कैन सी हियर, दिस इज पेंट प्रोग्राम। हम इसको पेंट विंडो कहते हैं। इन दिस विंडो चिल्ड्रन वी हैव स्टडीड अबाउट, हमने अभी तक पढ़ा है कलर बॉक्स। वी हैव स्टडीड इन द कलर बॉक्स वी हैव डिफरेंट कलर्स टू डू कलरिंग इन द ड्राइंग विच वी डू। देन वी हैव टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम ड्राइंग बनाते हैं। देन वी हैव ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया इज़ द एरिया वेयर वी मेक आर ड्राइंग, जहाँ पे हम अपनी ड्राइंग करते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर रेड कलर का जो लाइन है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे हम प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे जब तक हम प्रोग्राम को सेव नहीं करते तब तक यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा होता, बल्कि अनटाइटल्ड पेंट लिखा होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है अनटाइटल्ड
पेंट। उसके बाद हमारे पास एक और बार है जिस पे मेन्यूज़ दिए होते हैं। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें फाइल, ओपन फाइल और व्यू, फॉर्मेट या फिर हेल्प की ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दी होती है। फिर उसके बाद वी हैव, जैसा कि मैंने बताया, टूल बॉक्स है, कलर बॉक्स है एंड ड्राइंग एरिया। तो चिल्ड्रन, टिल नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट मेन पॉइंट्स। आपको मोटी मोटी चीज़ें आपको पता चल गई है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज टूल्स इन ब्रीफ। हम इन टूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे एंड वी विल डू ड्राइंग एंड कलरिंग ऑल्सो। सो चिल्ड्रन, revise whatever we did, go through the difficult words, learn the spellings, and we will meet once again in our next video. Till then, thank you.